And if you look at my Telegram channel since yesterday, things were pretty much into our favor. And when things are getting into your favor, that's when you can realize that you will be very soon be getting to be wronged. So हम उस चीज को रियलाइज करके चलते हैं, because that's what the reality of the trader is. Whenever there are good days, just it is the days which is just waiting to happen or to convert into bad ones. So that is the story, that is the reality. So once you are having a good time, you should reduce your position sizing as you are progressing with the time. But once you get comfortable with that upper range, upper trajectory on the profit, then you can slowly and slowly scale up. So coming to the expiry day for tomorrow, but before that, look at the beauty. Look at the beauty what we discussed. If you watched my yesterday's video, I discussed that this rectangle was the gap filling area, and exactly from there yesterday we got a hit that there was a trap here. There was a trap below this here which was set up to trap the bears. It had the bears trapped in, and it had a stop loss for the bulls. So the bulls went out of the market, bears went in the market, got trapped, and we got this likes. So this is the typical kind of trapping net which was laid by the big institutions. तो यही होता है जो big institutions आपको ट्रैप करना चाहते हैं वो easily कर लेते हैं. तो आज क्या हुआ है, that market आज जैसे ही खुला उसने immediately again ये reaction दिया ये rectangle पे, और immediately it filled the gap. और गैप फिल करने के बाद उसने जो एस्केलेशन दिखाया ऊपर की तरफ, एक ब्लैक लाइन यहाँ पे था हमारा कुछ, वो इस ब्लैक लाइन को तोड़ा और दूसरे ब्लैक लाइन को इसने अचीव किया. फिर ब्लैक लाइन से उसने रिस्पेक्ट किया इस ब्लैक लाइन को. द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्लैक लाइन वाज देयर, दैट्स व्हाई इट रिस्पेक्टेड द ब्लैक लाइन ऑन द अपर बाउंड. तो इस ब्लैक लाइन को उसने फिर रिस्पेक्ट दिया. रिस्पेक्ट देते हुए उसने अप्रोक्सीमेटली जो डाउनफॉल आया दैट वाज ऑफ अराउंड 145 पॉइंट्स, और 145 पॉइंट्स का जो रिस्पेक्ट के बाद इसने अगेन एस्केलेशन दिया. फिर एम पैटर्न बनाते हुए एक क्विक डाउनफॉल आया. ये 12 बजे के बाद ही आता है, एंड दिस इज टिपिकल ऑफ द वेडनेसडेज. वेडनेसडेज को प्रॉफिट बुकिंग आता है, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता है कि एक्सपायरी डे के big institutions they don't want to play on the expiry days. Expiry days are just left for petty traders, though big institutions also play that, but much of the capital is being withdrawn before the expiry date. So that's what the profit booking did came, because this momentum on the upside was uh, kind of an opportunity for the people who were having their stop losses hit, and they were waiting some kind of retracement on the upside, and then they want to just exit. So that's how they exited here. But their choice, their placement, their timing was very wrong, because that's where your patience was tested. Okay. And यहीं से दोबारा से एक रैली ऊपर की तरफ आ गया, राइट. तो ये जो रैली अब दोबारा से आया है ये इतना रॉबस्ट था कि आप अगर ये यहाँ पे देखें कि ये रैली आया, और रैली के बाद ये जो डाउनफॉल जो आया ये कहाँ तक आया. डाउनफॉल सिंपली वहां तक आया जहां से ये सारा गेम स्टार्ट हुआ था. अगर 15 मिनट्स का कैंडल पे जाओगे आप, ये देखो 15 मिनट्स के कैंडल पे देखो, मार्केट ओपन हुआ. मार्केट ओपन होने के बाद ये देखिए 915 का कैंडल है. ये 915 के कैंडल के बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया. सपोर्ट लेने के बाद इमीडिएटली इसने अपसाइड मोमेंटम दे दिया. तो दोबारा जब यहाँ पे आया है तो ये दिस वाज द पॉइंट वेयर इट स्टार्टेड दिस ओपन ड्राइव. So what I say is that this open drive was initiated at this level. Okay. And again, when the market comes back to this level again to test this open drive, again this kind of similar reaction, similar memories, similar momentum on the upside was repeated, and this was repeated in a way that it was crossing days low, days high. And तो यही चीज होती है कि डे हाई को आप यहाँ पे देखें, अगर इस तरह का इसका ये देखिए
कोई भी स्पेस नहीं था अपसाइड में, इतना डिमांड था मार्केट में कि रेंज से बाहर चला गया, राइट। तो ये जो मोमेंटम है, कल को ये कंटिन्यू होता है तो कैसे हमारा मोमेंटम और हमारी एक्सपायरी हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग हम पहले डेटा देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में अगर हम देखें 37,000 में बहुत सारा कॉल राइटिंग हो रहा था 37,000 में, बट आज मैंने क्या देखा है 37,000 में OI चेन जो है नेगेटिव हो गया है। दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ जिटरीनेस। जो कॉल राइटर्स हैं दे आर गेटिंग जिटरी कि 37,000 का जो कॉल है वो एक्सपायर होगा कि नहीं, वर्थलेस कि नहीं होगा। इवन दो अभी भी देर इज लॉट मैनी कॉल राइटिंग ऑन 37,000, तो अभी ये 37,000 पे जो ये फॉल आ गया है OI का चेंज, दैट मीन्स कि कल एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अपने लिए। तो कल का दिन थोड़ा अपने लिए अपसाइड पे ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है, बिकॉज जिस तरह से ये फॉल आ रहा है कॉल साइड पे, ये मार्केट को दिखाता है कि call writers are getting scared now. You are not scaring any street guy, you're not scaring any small retail traders who's coming with 10,000, 20,000 rupees. You're scaring people who have tons of money in their pockets, and when they get scared they will act. They will not be sitting foolishly कि हाँ भाई जाने दो 10,000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो एक्ट जब करेंगे तो मार्केट पूरा हिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अपने आपको बचाते हुए अपने रिस्क मैनेजमेंट को आप इन प्लेस रखना, उसको भूलना नहीं, राइट। तो ये चीज हमने रियलाइज किया। अगर नीचे से देखें तो कॉल यहाँ पे जो पुट एडिशन है, ये देखो पुट एडिशन हर जगह हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये जो पुट, बल्कि जो दूर वाला पुट है 36,000, वो लोगों ने शिफ्ट करके 36,200 पे ले गए, 36,400 पे ले गए, ठीक है। इनफैक्ट वो और आगे आते आते 36 यहाँ पे भी आ रहे हैं। बट कॉल राइटिंग देखो, कॉल जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे कम होता चला गया। एट द मनी पे जरूर लोगों ने स्ट्रैडल बनाया है, बट ऊपर जाते जाते ये कम हो रहा है, ठीक है। तो पुट पे बहुत स्टेबिलिटी है, कॉल में इंस्टेबिलिटी है। कॉल वाले डर रहे हैं, पुट वाले वेरी कॉन्फिडेंट कि अब मार्केट पे ऊपर ही भाग जाएगा। तो ये जो बायसनेस है, यहाँ से हम लेते हुए अब कल का प्लान बनाते हैं। तो ये देखो प्लान, ये रहा ब्लैक लाइन जो आज हमने ट्रेड किया है, उसमें से लोअर बाउंड है, एक अपर बाउंड है। तो ये ऊपर वाले ब्लैक लाइन को भी आज इसने क्रॉस कर दिया। तो सिंपली पुट हमारा क्या रिएक्शन हो सकता है? सिंपली पुट हमारा रिएक्शन ये हो सकता है कि अभी भी 37,000, एक तो 37,000 साइकोलॉजी लेवल है यहाँ पे। लेट मी जस्ट मार्क इट अगेन। तो 37,000 यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पॉइंट है वो रेड लाइन से होगा। ब्लैक लाइन इज जस्ट द लाइन विच is volume weighted, so I deduce those lines. I have a process, so I deduce those lines in terms of its cruciality in terms of price action and also in terms of the volume. So ये दो ब्लैक लाइन है विच विल बी इम्पोर्टेंट फॉर टुमारो। अब 15 मिनट्स के चार्ट पे जाके अब डिड्यूस करते हैं कि कल की जो मूवमेंट है कैसी रहेगी। डेफिनेटली अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्विक अपसाइड मूव अपने को मिलेगा। यहाँ से फ्लैट हुआ, इसने कोई टाइम नहीं लगाना है, सीधा 37,000 पे जाएगा और सीधा क्रॉस, ये सीधा सीधा आई थिंक इट विल जस्ट क्रॉस 37,000 विद अ स्पाइक, and moment it does that it will trap the bulls because this is an expiry day, it cannot be linear, it cannot be one way, okay। so it will trap the bulls और 37,000 के नीचे आ जाएगा, फिर somewhere ऐसे ऐसे करके ये कंफ्यूज करेगा, क्लोज करेगा, राइट। तो अपर बाउंड में मेरा जो है सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हो रहा है, अब देखो कितना यहाँ पे डाइसी हो गया सिचुएशन, 37,300। तो 37,300 पे हम अपर रेंज बना सकते हैं, राइट। बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक ब्रेकआउट आएगा कल, राइट। तो ग्रीन रहेगा इन द इवेंट ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग। अगर ये बाय चांस गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है देन इट विल गेट स्टक, बिकॉज ये जो रैली आया था इसको नेगेट करेगा। जब ये रैली को नेगेट करेगा विद अ गैप डाउन, दैट मींस समथिंग सीरियस हैज हैपेंड इन द मार्केट। और एक्सपायरी डे पे सीरियसनेस को क्या बोलते हैं? ये सीधा रिएक्शन देगा नीचे की तरफ, नीचे देगा फिर ऊपर जाएगा, गैप फिल करेगा, यहाँ पे अटक जाएगा,
इस रेंज में कहीं। ओके, ऐसे अटक जाएगा। अगर ये गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग देता है, दैट मीन्स it has accepted this increase in the price momentum. So once it has accepted the increase in the price momentum, definitely gap up opening के बाद ये इसको गैप फिल कर सकता है, जैसे कि आज हुआ गैप अप थोड़ा सा हुआ 40 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट्स का, immediately within microseconds it filled the gap and then took a lead on the upside. So same thing can repeat here also, बिकॉज कई तरह के गैप्स होते हैं। अब ये ट्रेंड कंटिन्यूइंग गैप हो सकता है जिसमें ये गैप दोबारा से बनाए और हम फिर दोबारा से ये अपसाइड को मूव करते हुए 37,300 के आसपास ये मूव कर सकता है उस तरह से। तो ये अपनी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसको हम कल प्ले करेंगे, कल इसको देखेंगे ध्यान से कैसे ये मैच्योर होती है। Obviously these are just the estimates. You have to take care of your risk management or your position sizing of your stop losses, but with my best calculation, with my best estimate, this would be the expiry range for tomorrow. Okay, तो expiry range अगर देखा जाए कितने points का है, तो let's just do that. It's of 880 points. That's quite quite good, because अगर इसको 880 points के range में अगर आप triangle straddle करते हैं तो बहुत अच्छा ही profit मिलेगा। I hope you like the video. Do comment, subscribe, and also share amongst your peers. Thank you.